مدارس رجسٹریشن بل پر مولانا فضل الرحمان اور اعظم نذیر تار آمنے سامنے۔ جے یو آئی سربراہ کہتے ہیں رویہ تبدیل نہ کیا تو فیصلے ایوان نہیں میدان میں ہوں گے۔ ہمیں گھمائے نہیں، ہمیں آپ سے زیادہ گھمانا آتا ہے۔ اعظم نذیر تار نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی شکایت پر بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جناب وزیر اعظم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، الجھا ہوا ہے، اس کو پورا کریں۔ ہم رفتہ رفتہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی تلخی کی طرف ہم نہ جائیں، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا وزیر اعظم صاحب کی آج بھی وہی پوزیشن ہے، یہ طے کیا تھا کہ یہ بل پاس ہوگا، یہ بل پاس کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ایڈوائس کے ساتھ وہ روانہ بھی کیا۔ صدر مملکت ان کی طرف سے ایک چٹھی آئی ہے۔ جناب عارف علوی صاحب کے وقت پہ ایک بل یہاں سے کیا، انہوں نے اس پر 10 دن کے اندر دستخط نہ کیے، اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا، نظیر قائم ہو گئی۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر کا ایک اعتراض کا حق حاصل ہے، دوسرے اعتراض کا حق پریزیڈنسی کو حاصل ہے۔ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس قانون سازی پہ صدر مملکت کے دستخط یعنی کہ ان کی اسینٹ، ان کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ جب 28 اکتوبر کا ان کا میسج تھا، وہ معاملہ پارلیمان کے یعنی کہ جوائنٹ سٹنگ میں آ جانا چاہیے تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور امینڈڈ جو ہے وہاں سے کوئی امینڈڈ ہم قبول نہیں کریں۔ آئین میں جو چیز طے ہے اس کے مطابق ہو جانے دو، بعد میں اگر کوئی تجویز آ گئی تو بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد بات۔ حالات خواہ بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں، اگر اس سے آگے پیچھے معاملہ گیا تو یقیناً پھر ایوان نہیں میدان میں۔ میں نے جو باتیں آپ سے سمجھی اور سیکھی ہیں وہ انگیجمنٹ اور ڈائیلاگ ہے۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ ایک قانونی موشگافی جو اس میں پیدا ہو چکی ہے، ہم حاضر ہیں۔ اگر قانونی طور پہ یہ اسی شکل میں نکل سکتا ہے تو سر ہاتھوں پہ خبت نہ کرو کہ وہ چیز اور پھر وہ چیز اور پھر اگر اس طرح ہو جاتا اور پھر اگر اس طرح ہو جاتا، یہ طریقے آپ سے ہمیں ذرا بہتر آتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کا اہم اجلاس ختم ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں مدارس رجسٹریشن بل پر مشاورت کی گئی۔ اسی پر بات کریں گے، وقار سلیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وقار، آگاہ کیجیے گا اجلاس میں کیا بات کی گئی ہے؟ جی دیکھیے، وفاقی المدارس کا جو سا مرکزی اجلاس عامہ ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئے۔ مفتی محمد تقی عثمانی نے اس جو اجلاس ہے اس کی صدارت کی، اور جبکہ جمعیت علماء اسلام کے جو امیر مولانا فضل الرحمان انہوں نے اس اجلاس میں بطور خصوصی شرکت کی۔ مجلس عامہ نے اتحادی تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور موقف کے حوالے سے جو توثیق ہے وہ کر دی ہے، اور وفاق المدارس کا ملک بھر میں جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ جمعۃ المبارک کے اجتماع اور ختم بخاری اور مدارس سالانہ پروگراموں میں عوام الناس کو اتحاد تنظیمات مدارس کے حوالے سے جو سے مزید موقف ہیں وہ بھی دیے جائیں گے، اور اس حوالے سے گزشتہ برسوں کی بنسبت سالانہ امتحان اور طلبہ و طالبات کے جو ریکارڈ میں ہے وہ اس تمام تر چیزوں میں جو اضافے ہیں اس کے اوپر بھی اس اجلاس کے اندر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ وقار سلیم تفصیلات کا۔ حکومت اور تحریک انصاف مفاہمت کی جانب بڑھنے لگے۔ شیر افضل مروت نے اسمبلی فلور پر مذاکرات کی بات دہرائی، ایوان کی کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دی۔ خواجہ آصف نے تجویز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دے دی۔ رانا ثنا اور عطا تار نے بھی خیر مقدم کیا۔ برف پگھلنے لگی، بات بننے لگی۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا خیر سگالی پیغام، حکومتی بینچز سے بھی مثبت جواب۔ شیر افضل نے ایوان کے جھگڑوں کو سوتنوں کی لڑائی قرار دیا، تجویز دی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایوان کی کمیٹی بنا دیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں، بیٹھ جائیں، کیا غلطیاں ہیں، کیا ہمارے ٹیوار ہونے چاہیے، کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالے؟ اس ایوان میں ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے، کہیں سوتنے آپس میں لڑ رہی ہے۔ جواب میں خواجہ سے بولے، پہلی بار پی ٹی آئی کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے پہلی دفعہ ادھر سے۔ یہ گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ آپ بار بار جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کریں، ساتھ جو ہے کال دیں سول نافرمانی کی،
सियासतदान सियासी ज़बान इस्तेमाल करते हैं मुज़ाकरात के लिए या मामलात के हल के लिए। राना सना ने कहा, बातचीत के बगैर जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी की कभी कोई बात नहीं की। हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, उसके बाद अपनी सीट पे आके उन्होंने कहा हम तैयार हैं आपके साथ बात करने को, मुज़ाकरात करने को। आप बैठे और हर उस इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं। अदातारा ने वाज़े किया, कभी सियासी मुखालफिन को दुश्मन नहीं समझा। शेर अफजल मरवत ने अच्छी शुरुआत की है। यहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी अच्छी शुरुआत की और रवादारी के हवाले से, बातचीत के हवाले से एक मुस्बत तकरीर की। आपकी और हमारी पार्टी के दरमियान 90 की दहाई में बहुत तलखी रही है, मगर कभी हमने अपने सियासी वर्कर को नहीं कहा था कि ये दुश्मन है, इसको पत्थर मारो। तलखियों की धूप में मुफाहमत की ठंडी हवा, खैर सगाली जज्बात ने मामलात में बेहतरी की आस दिला दी। पार्लियामेंट में हो तो एक दूसरे से लड़ते हैं, बाहर हो तो एक साथ चाय पीते हैं। ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है। मुजाहिरीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन पर गोली चला दी जाएगी। कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान का जज्बाती खिताब, कहा हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात करने चाहिए, वो सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। उनका कहना था कि वो मौलाना का गुस्सा ठंडा कर देंगे या हम खुद गुस्से में आ जाएंगे। आगे बढ़ें, ये मुल्क कब तक इस तरह हम यरगमाल बना के रख सकते हैं। अवाम को, 25 करोड़ अवाम को और मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए मकालमा, डायलॉग, बातचीत, मुज़ाकरात ज़रूरी है, जो कि अपोजिशन को भी एक खिड़की खोलनी चाहिए, मौका निकालना चाहिए। और सिर्फ महाज आराई से मेरे ख्याल में जो है वो सबका नुकसान। या तो उनका गुस्सा ठंडा कर देंगे या फिर हम खुद गुस्से में आ जाएंगे उनके साथ। डायलॉग और बातचीत का कोई भी मौका हो उसे ज़ाया ना करें। चंद नुकात पर इकट्ठा होकर जो मुज़ाकरात की टेबल है उस पर तो बैठे ना। अगर हमें ये मौका मिले और दोनों हुकूमत की बड़ी जमातें और अपोजिशन की बड़ी जमात हम एमक्यूएम से इत्तफाक करें तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान का किरदार अदा करने के लिए एमक्यूएम तैयार है, मसालियत कराने के लिए तैयार है, मफाहिमत कराने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो कोशिश तो करें, हमें एक चांस तो दें। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का कहना है कि पीटीआई गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा बहादुर अवाम का सूबा है, लेकिन उनके हुक्मरान नाअहल हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनका लीडर धमकियों को पसंद करता है, सिविल नाफरमानी तो वो पहले से कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा अच्छे लोगों का सूबा है, गैरतमंद लोगों का सूबा है, बहादुर लोगों का सूबा है, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि उनके पास जो हुक्मरान हैं वो नाअहल तरीन है। उनके जो हुक्मरान हैं वो अफरा तफरी को पसंद करते हैं। उनका जो लीडर, जिसकी हुकूमत है, उनका लीडर जो है वो शर पसंदी को पसंद करता है, वो धमकियों से पसंद करता है। मुझे बताएं कि अभी उन्होंने कहा कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे। ये सिविल नाफरमानी तो अब से नहीं कर रहा, सिविल नाफरमानी तो वो तब से कर रहा है जब उसने बिजली के बिल जलाए थे। सिविल नाफरमानी पर बानी के हुक्म का इंतजार है, उनका हुक्म आते ही तहरीक शुरू हो जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्हें गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में जाने नहीं दिया गया। मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले कहा मुलाकात है, जब गेट पे गया उन्होंने कहा जी आपको इजाजत नहीं है। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो जो क्लियरेंस मांग रहे हैं पहले तो उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए। वो जो हरते इस मुल्क में कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है? ऐसी हरते करने वालों की फिर चलो जल्द मुलाकात हो जाएगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज खान साहब ने कहा था कि आज इसके बारे में बताएंगे तो सामने आएगी, तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। यूनान कश्ती हादसा दर्द आलम की दास्तानें छोड़ गया। 6 पाकिस्तानी जाने गंवा बैठे, 40 ताहाल लापता है। हादसे का पहला मुकदमा जाबहक नौजवान की वालिद की मुद्दत में गुजरावाला में दर्ज कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक उनके प्यारों ने इंसानी स्मगलर्स को लाखों रुपए दिए थे।
देखे थे सुनहरे ख्वाब मगर गलत रास्ते का कर लिया इंतखाब। इंसानी स्मगलर्स को रकम देकर मौत खरीदी गई, कई जिंदगियां समंदर बुर्द हुईं, 40 पाकिस्तानी ताहाल लापता। यूनान कश्ती हादसे का पहला पर्चा गुजरांवाला में कट गया। मुकदमा जांबहक मोहम्मद सुफियान के वालिद की दरखास्त पर दर्ज किया गया। वालिद के मुताबिक सुफियान को लिबिया से जबरदस्ती कश्ती में सवार कराया गया। नौजवान को फैसलाबाद से मिस्र फिर लिबिया पहुंचाया गया। सेफ हाउस में नौजवानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा। हादसे में जांबहक 6 अफराद का ताल्लुक फालिया के इलाके हैला से है। एहतशाम अंजुम, अयाज, अब्दुर्रहमान, फहद, खालिद और अनस असलम ने जानें गंवा दी। 4 अफराद ताहाल लापता हैं, एक को जिंदा बचा लिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिहड़ा एलां च होया है, इस तो पहले भी होंदे रहे ने। एक पहला वाकया नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਕੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। जांबहक और लापता अफराद हादसे का शिकार तीसरी कश्ती में सवार थे। कश्ती के 83 मुसाफिरों में 76 पाकिस्तानी थे। 36 पाकिस्तानियों समेत 39 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद आपको बताएं, यूनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कहते हैं कि दर्जनों लापता पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीद कम है। यूनान में दर्दनाक कश्ती हादसा, सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर बुर्द हो गए। 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। जाँ बहक 6 नौजवानों के नाम एहतशाम, अयास, अब्दुर्रहमान, फहद, खालिद, अनस और हारून असलम हैं। मरहूमीन का ताल्लुक फालिया के इलाके हीला से था। बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने माजरा कुछ यूं बयान किया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮੁਕੀਮ ਆ ਯੂਨਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ GPS ਸੀ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਟਾਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। बच जाने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात, सियालकोट और कसूर से है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कहते हैं 5 कश्तियों में से 3 में पाकिस्तानी सवार थे, बच्चे भी शामिल थे। ये 5 डिफरेंट वाक़े हैं। जो 3 किश्तियाँ थीं उनमें पाकिस्तानी सवार थे। इसमें 83 बंदे थे। जो बल्क था पाकिस्तानियों का वो इस शिप के अंदर, चूँकि वो ओवर क्राउडेड थी, वो जो है उलट गई। 47 लोग हैं जो कि बच गए। कि अपनी माइनर बच्चों को तो मत भेजें आप इस किस्म के खतरनाक जो है सफ़र पर। आमिर आफ्ताब कुरैशी का कहना है कि कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है मगर बचने की उम्मीदें कम हैं। जाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशें सिफारत खाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। बरतानिया में 10 साला बच्ची सारा शरीफ के कत्ल केस पे वालदैन को सजा सुना दी गई। सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालदा बीनेश बतूल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सजा के बाद वालिद इरफान शरीफ को कम अज कम 40 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे। मुल्जिमान को पाकिस्तान से लंदन वापसी पर एयरपोर्ट पर जहाज के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने चचा फैसल मलिक को भी कसूरवार करार देकर 16 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालत के मुताबिक बिनेश बतूल को पहले भी फ्रॉड के केस में सज़ा हो चुकी है। जज को बताया गया कि सारा पर कई बरसों से तशद्दुद होता रहा। जिस्म पर जख्मों के 71 निशानात थे। वालिद इरफान शरीफ क्रिकेट बैट, लोहे की रॉड से तशद्दुद करता था। जालिम शख्स ने बेटी पर मरने के बाद भी तशद्दुद किया।
कराची की टूटी सड़कों ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। 13 साल की मन्नत मुरादों के बाद पैदा होने वाला 5 माह का शामिर ट्रेलर तले आकर जान की बाजी हार गया। हादसा हफ्ते को पेश आया। शाहजेब की रिपोर्ट देखिए। कराची की टूटी सड़कें आवाम के लिए मौत का कुआं बन चुकी हैं। मुरम्मत के लिए खोदी गई सड़क हो या किसी और वजह से तबाहाल सड़क, जान आवाम की ही जाती है। कोरंगी नासिर कॉलोनी में गुज़िश्ता हफ्ते मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हुई 5 माह का अकलौता शामिर मां की गोद से गिरा और वापस न आ सका। 22 व्हीलर ट्रॉलर से कुचलकर जाँ बहक होने वाला शामिर 13 साल बाद मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। जैसे घर से निकले तो रोड ख़राब होने की वजह से हैवी ट्रैफिक की जद में उनका बच्चा आके इस हादसे में अपनी जान खो बैठा। 13 साल बाद उनको ये औलाद अल्लाह ने दी थी और हम लोगों पे एक सानिया जैसा मंजर गुजरा हुआ है। अहले मोहल्ला का कहना है कि चंद पैसों की खातिर ट्रैफिक एहलकार भारी गाड़ियों को छोड़ देते हैं, जबकि दूसरी तरफ आधी सड़क नर्सरी बनाने वालों और दीगर ने घेर रखी होती है। पुलिस की नाअहली है, उसकी वजूहात की बिना पर ये ट्रैफिक बड़ी ट्रैफिक है अंदर शहरों में आ जाती है, कस्बों में आ जाती है। सड़क पूरी पे तजावजात है, तजावजात का कब्जा है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। इंतजामिया है उसके जूं तक नहीं रेंगती। शहरियों का कहना है कि कराची की सड़कों पर आए रोज हादसात रोनमा हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है। 13 साल बाद औलाद की नेमत का मिलना और इस अफसोसनाक हादसे में दुनिया से चले जाना, इस दुख का मदावा कौन करेगा। कैमरामैन शहादत बलोच के साथ शाहजेब हुसैन, आज न्यूज़, कराची। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली के खंभे भी गायब होने लगे। चोरों ने बिजली के खंभे चोरी करना शुरू कर दिया। एक ही रात में न्यू मलिर हाउसिंग स्कीम से करोड़ों रुपए की मालियत के बिजली के खंभे निकाल कर ले गए। वारदात के बाद MDA प्रोजेक्ट के वकील परेशान हो गए। अलॉटीज ने नेशनल हाईवे पर धरना देने का ऐलान कर दिया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज।